नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 आपको याद आना चाहिए। उसमें वर्टिसेस गिवन थे, आपको इन सेंटर फाइंड करना सिखाया गया था। यहाँ आपको वर्टिसेस गिवन नहीं है, यहाँ आपको साइड्स ऑफ ट्राइंगल गिवन है और आपको इन सेंटर फाइंड करना है। तो एक पार्ट तमीज से सीख लें। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड the in center of the triangle the equations of whose sides are L1, L2 and L3. L1 is y minus 15 is equal to 0. L2 is 12y plus 5x is equal to 0. And third line is 4y minus 3x is equal to 0. तो आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि साइड्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें। तो आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन हैं, L1, L2 एंड L3। आपको L1, L2 को सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन P1 फाइंड करना चाहिए। L2, L3 को सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन P2 फाइंड करना चाहिए और L1, L3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके P3 फाइंड करना चाहिए। तो सॉल्व L1 एंड L2, सॉल्व L1 एंड L2। कंसीडर L1, इट इज y minus 15 is equal to 0। डायरेक्ट y की वैल्यू मालूम हो गई, इट इज इक्वल टू 15। Consider L2, it is equal to 12y plus 5x is equal to 0. So 12 into 15 plus 5x is equal to 0. So 5x is equal to minus 12 into 15. तो ये 5 कैंसिल हो गया 15 से, 3. So 12 into 3 is 36. So x become minus 36. इसका मतलब आपको x भी मालूम, y भी मालूम, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया -36, 15। ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 which is P1. Now solve L2 and L3. Solve L2 and L3. तो वैसे तो इनका सॉल्यूशन यानी इनका इंटरसेक्शन ओरिजिन होगा। क्यों ओरिजिन होगा? क्योंकि L2 में भी y इंटरसेप्ट नहीं है, देयर इज नो एनी कांस्टेंट टर्म। L3 में भी y इंटरसेप्ट नहीं है, देयर इज नो एनी कांस्टेंट टर्म। तो जब दोनों में y इंटरसेप्ट नहीं है, इसका मतलब दोनों ही ओरिजिन में से पास होंगी। तो जब दोनों ही ओरिजिन में से पास हो रही हैं तो ओरिजिन ही इंटरसेक्शन हो जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लें। फ्रॉम L3, 4y minus 3x is equal to 0. So 4y is equal to 3x. Y is equal to 3x divided by 4. Consider L2.
L2 is equal to 12y plus 5x is equal to 0. 12y plus 5x is equal to 0. So 12y is equal to 3x upon 4 plus 5x is equal to 0. ये हो जाएगा 4 cancel. So it becomes 9x plus 5x is equal to 0. 14x is equal to 0. So x is equal to 0 upon 14, it is equal to 0. Now because y is equal to 3x divided by 4. So y is equal to 3 upon 4 into 0. So y is equal to 0. y is equal to 0. इसका मतलब हुआ कि P2 के कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y, x भी 0, y भी 0. Now solve L1 and L3 to find their intersection, which is P3. So L1, it is equal to y minus 15 is equal to 0, so y is equal to 15. y की ये वैल्यू आप L3 में पुट कर लें. L3 is 4y minus 3x. 4y minus 3x is equal to 0. 4y minus 3x is equal to 0. So 4 into y is equal to 15 minus 3x is equal to 0. So 60 is equal to 3x. 3x is equal to 60. So x is equal to 60 divided by 3. It is 20. इसका मतलब आपको P3 मालूम हो गया. P3 के कोऑर्डिनेट्स 20, 15. इसका मतलब आपने ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस, तीनों साइड्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तीनों वर्टिसेस फाइंड कर ली. तो P1, it is the first vertex. It is equal to P1 था minus 36, 15. P2, it is 0, 0. And P3, it is 20, 15. तो अब आपको ज़रूरत होगी साइड्स की लेंथ की. शायद याद आ गया हो कि P1 के अपोजिट साइड्स, यानी फर्स्ट वर्टेक्स के अपोजिट साइड स्मॉल a, सेकेंड वर्टेक्स के अपोजिट साइड स्मॉल b और थर्ड वर्टेक्स के अपोजिट साइड स्मॉल c. By using distance formula we can find length of A, B and C. उसके बाद फिर आप in center find कर सकते हैं by using formula of in center. In center उसके लिए in circle draw किया, circle which is touching all the sides internally. The center of this circle, it is in center. Formula यकीनन याद होगा. Find sides. A is the side opposite to P1, so it is P2, P3. Use distance formula between P2 and P3. It is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So it is equal to the square root of P2 is first point x1, y1, P3 is second point x2, y2. So it is 20 minus 0 whole square plus 15 minus 0 whole square.
it is equal to square root of 20 square plus 15 square. So 20 square it is equal to 400 and 15 square is 225. So it becomes square root of 625, which means 25 units. ये हो गई साइड ए. अब बी फाइंड करें. B is the side opposite to P2, which means it is the distance between P1 and P3. So again use distance formula. It is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. P1 is the first point, coordinate x1, y1. P3 is the second point, coordinate x2, y2. So it becomes 20 minus into minus 36. So 20 plus 36 plus 15 minus 15 whole square. It is equal to square root of 56 whole square plus 0, यानी square root of 56 whole square. Root से बाहर निकल आएगा, so it is 56 units. Now find length of the third side. The length of third side C. C is the side opposite to P3. So it is the distance between P1 and P2. So again use distance formula. It is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. अब P2, P1 first point x1 y1 और P2 second point coordinate x2 y2. तो values put कर दें. Square root of 0 minus into minus 36. 0 plus 36 whole square plus 0 minus 15 whole square. It is equal to square root of 36 whole square plus minus 15 whole square. It is equal to square root of 36 square. It is 1296. Minus square is plus 15 square is 225. It is equal to square root of 1521 and its square root is 39 units. आपने तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड कर ली. A is equal to 25, B is 56 and C is 39. अब आप इन सेंटर फाइंड कर सकते हैं, which is I. फॉर्मूला शायद याद ही हो आपको. Now in center of the triangle I with coordinate x comma y is equal to ax1 plus bx2 plus cx3 divided by a plus b plus c, comma ay1 plus by2 plus cy3 divided by a plus b plus c. Now I is equal to values put करें तो a is 25, x1 is equal to minus 36, b is equal to 56, x2 is 0, c is equal to 39, x3 is equal to 20, whole divided by 25 plus 56 plus 39, a plus b plus c, comma ay1 plus by2 plus cy3. A is equal to 25, y1 is equal to 15, plus b is equal to 56, y2 is equal to 0, and c is 39, y3 is equal to 15. Whole divided by again a plus b plus c, यानी 25 plus 56 plus 39.
Now it is equal to I 25 into minus 36, it is minus 900 plus 0 plus 39 into 20, it is equal to 780 divided by 25 plus 56 plus 39, it is 120. Now 25 into 15 is 375 plus 0 plus 39 into 15 is 585 whole divided by 120. Now I is equal to minus 120 divided by 120 comma 375 plus 585 is 960. 960 divided by 120, तो 120 ये कैंसिल हो गया, इसी तरह 120 ये 90 960 से कैंसिल हुआ, इट बिकम्स 8, ये अब बन जाएगा 1 एंड इट इज 8 minus 1 comma 8, it is the coordinate of in center. अब इसके बाकी पार्ट्स मेरा ख्याल में आपको कर लेने चाहिए बिल्कुल इसी तरह से ही। आपको हर एक पार्ट में 3 स्ट्रेट लाइंस गिवन है। क्वेश्चन इज फाइंड इन सेंटर। तो आप पहले तो P1, P2, P3 फाइंड करें साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, फिर ABC की वैल्यूज फाइंड करें, उसके बाद फिर इन सेंटर के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करें। क्वेश्चन नंबर 12 यकीनन आपने कंप्लीट कर लिया होगा। इसमें था प्रूव बाय द मेथड ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट द गिवन लाइंस आर कॉनकरेंट। तो आपने एरिया फाइंड किया होगा, वो 0 आया होगा, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि गिवन पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। Now come to question number 13. Question number 13 is find the measures of the angles. Find the measures of the angles of the triangle the equations of whose sides are L1, L2 and L3. L1 is x plus y minus 5 is equal to 0. L2 is x minus y plus 1 is equal to 0, and L3 is y is equal to 1. And also find area of triangle. दो काम करने हैं। पहले तो आप एंगल्स फाइंड कैसे करेंगे। आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स दे रखी हैं, L1, L2 एंड L3। L1, L2 एंड L3। तो पार्ट नंबर 1 है फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स। वी हैव टू फाइंड दीज एंगल्स। तो आपको याद आ गया होगा कि एंगल्स
फाइंड करने हैं तो सबसे पहला काम आप एंगल्स को सेम डायरेक्शन देंगे। वो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो तो सबकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और अगर क्लॉकवाइज है तो सबकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज। फर्ज करें ये θ1 है, फर्ज करें ये θ2 है, फर्ज करें ये θ3। तो ये एंगल्स फाइंड करने के लिए आपको साइड्स के स्लोप की ज़रूरत होगी। तो आप पहले स्लोप फाइंड कर लें। कंसीडर L1 is x plus y minus 5 is equal to 0, so y is equal to minus x plus 5. कंपेयर करें, कंपेयर विद y is equal to mx plus c, इसका मतलब स्लोप इज इक्वल टू -1। क्योंकि ये फर्स्ट लाइन का स्लोप है तो मैंने इसे कह दिया m1। Now consider L2. L2 is x minus y plus 1 is equal to 0, can be written as x plus 1 is equal to y, यानी y is equal to x plus 1। इसे भी कंपेयर करें, कंपेयर विद y is equal to mx plus c, इसका मतलब हुआ कि स्लोप m is equal to 1। क्योंकि ये सेकेंड लाइन का स्लोप है तो इसे आप कह सकते हैं m2। Now consider L3, which is y is equal to 1, can be written as y is equal to 0x plus 1। क्योंकि x की टर्म ही नहीं है तो 0x plus 1 लिखा जा सकता है। Compare this equation with y is equal to mx plus c, इसका मतलब स्लोप ऑफ थर्ड लाइन इट इज इक्वल टू 0। तो आपको तीनों साइड्स का स्लोप मालूम हो गया। अब θ1 फाइंड करें। θ1 के लिए जो साइड्स इन्वॉल्व हैं उनका स्लोप है m1 और m3। भाई एक साइड L1 है, एक M3 है, इसका मतलब स्लोप्स m1 और m3। अगर आप हेड माइनस टेल यूज करेंगे तो हर एक में हेड माइनस टेल यूज किया जाएगा, और अगर टेल माइनस हेड यूज करेंगे तो फिर हर एक में टेल माइनस हेड यूज किया जाएगा। आपको याद आ जाना चाहिए। Now θ1 it is equal to tangent inverse, if we use head minus tail, so it is m3 minus m1 divided by 1 plus m1 into m3. It is equal to tangent inverse m3 is equal to 0 minus m1 is minus 1 divided by 1 plus m1 is equal to minus 1 and m3 is 0. It is equal to tangent inverse 0 plus 1 divided by 1 plus 0. It is equal to tangent inverse 1 upon 1. 1 upon 1 it is 1. So tangent inverse 1, it is 45 degree means pi by 4 radians. Now come to θ2. θ2 के लिए भी आपको हेड माइनस टेल ही यूज करना चाहिए। हेड माइनस टेल तो यहाँ होना चाहिए m1 माइनस m2। तो we use tangent inverse m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. It is equal to tangent inverse m1. m1 is equal to minus 1, m2 is 1 divided by 1 plus m1 is minus 1, m2 is 1. It is equal to tangent inverse minus 2 divided by 1 minus 1. 1 minus 1 ये तो हो गया कैंसिल, बाकी बच जाएगा भाई θ2 is equal to tangent inverse minus 2 upon 0. It is equal to tangent inverse
इन्फिनिटी और टेंजेंट की वैल्यू इन्फिनिटी 90 डिग्री पे होती है, यानी π/2 रेडियस। थीटा 2 इज π/2 रेडियस। नाउ कम टू थर्ड एंगल थीटा 3। तो यहाँ पे भी आपको यूज करना चाहिए हेड माइनस टेल। तो इट कैन बी रिटन एज टेंजेंट इनवर्स हेड माइनस टेल। m2 minus m3 divided by 1 plus m2 into m3. It is equal to tangent inverse m2 is equal to 1, m3 is 0 divided by 1 plus m2 is equal to 1 and m3 is 0. It is equal to tangent inverse 1 upon 1. 1 upon 1 is equal to 1 and tangent inverse 1 is again 45 डिग्री यानी π/4 रेडियंस। तो ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट यही था, फाइंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अब आइए सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस मालूम होने चाहिए। तो सॉल्व L1 and L2। L1 है x plus y minus 5 is equal to 0। L2 है x minus y plus 1 is equal to 0। आप ऐड कर दें तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 2x minus 4 is equal to 0। इसका मतलब 2x minus 2x is equal to 4। So x is equal to 2। x की ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। If we consider L1, it is x plus y minus 5 is equal to 0। So 2 plus y minus 5 is equal to 0। y minus 3 is equal to 0। So y is equal to 3। इसका मतलब आपको P1 मिल गया। P1 is equal to x comma y। It is 2 comma 3। तो P1 के कोऑर्डिनेट्स आ गए भाई 2 comma 3। Now solve L2 and L3 to find P2। Solve L2 and L3। चूंकि L3 में आपको डायरेक्ट y की वैल्यू गिवन है, तो फ्रॉम L3 y is equal to 1। Put in L2, L2 is equal to x minus y plus 1 is equal to 0। तो x minus 1 plus 1 is equal to 0 कैंसिल हो गया, x is equal to 0। इसका मतलब आपको सेकेंड पॉइंट मालूम हो गया P2। P2 is equal to 0, 1। तो फर्स्ट पॉइंट था 2, 3। और सेकेंड पॉइंट आपने फाइंड किया, इट इज 0, 1। अब आप सॉल्व करें L1 और L3 को। सॉल्व L1 एंड L3। सॉल्व L1 and L3। So again from L3 y is equal to, given it is 1, put in L1, L1 is equal to x plus y minus 5 is equal to 0। x plus 1 minus 5 is equal to 0। x minus 4 is equal to 0। So x is equal to 4। इसका मतलब आपको P3 मालूम हो गया। P3 is equal to 4, 1। P1, P2, P3 मालूम। तो अब आइए एरिया। Therefore, area of triangle formed by P1, P2 and P3, it is equal to half of determinant of order 2 by 2, x2 minus x1, y2 minus y1, x3 minus x1, y3 minus y1। वैल्यूज पुट कर दें तो हाफ ऑफ P1 था
2,3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा P1 था 2,3, P2 था 0,1, तो इसका मतलब ये हो गया 0 - 2, 1 - 3. P3 is 4,1, so 4 - 2 and 1, 3. फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये बन जाएगा हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ -2, -2, 2, -2. It is equal to half of -2 multiplied by -2 minus -2 into 2. It is equal to half of 4 plus 4. It is equal to half of 8. It is equal to 4 square units. ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय L1, L2 एंड L3. क्योंकि L1, L2, L3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपने वर्टिसेस फाइंड कर लिए थे. तो वर्टिसेस को आपने नाम दिया P1, P2, P3. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय P1, P2 एंड P3 इट इज 4 स्क्वायर यूनिट. तो ये बाज़-औक़ात सिर्फ एंगल पूछा जाता है, बाज़-औक़ात सिर्फ वर्टिसेस एरिया पूछा जाता है, बाज़-औक़ात ये कंप्लीट क्वेश्चन आ जाता है कि एंगल्स के साथ साथ आपसे एरिया भी पूछ लेते हैं. तो मैंने कंप्लीट करा दिया है, क्योंकि ये पास्ट पेपर्स आप देखेंगे तो कई दफ़ा आपको ये सवाल नज़र आ जाएगा. अब दो बातें याद रखिएगा. क्वेश्चन तो अभी हम नहीं करा रहे, लेकिन कोई भी मूविंग पॉइंट हो, ये कहलाता है लोकस पॉइंट. लोकस पॉइंट जो पाथ बनाएगा, अपनी मूवमेंट की वजह से जो पाथ बनाएगा, दैट इज सेड टू बी लोकस. फिर सुनने, कोई भी आवारा पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है, यानी अपनी पोजीशन बार बार चेंज करता रहता है पॉइंट, तो वो पॉइंट कहलाता है लोकस पॉइंट. लोकस पॉइंट अपनी मूवमेंट की वजह से जो ट्रेजेक्ट्री बनाएगा, जो पाथ बनाएगा, दैट इज सेड टू बी लोकस. कभी लोकस पॉइंट पूछा जाता है, कभी लोकस पूछा जाता है. अगर कभी आपसे लोकस पॉइंट पूछा जा रहा हो तो इसके लिए दो इंफॉर्मेशन ज़रूर गिवन होनी चाहिए, और अगर कभी लोकस पूछ रहे हैं तो इसके लिए एक इंफॉर्मेशन काफ़ी होती है. लोकस पॉइंट क्या होता है, लोकस क्या होता है, लोकस पॉइंट फाइंड करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लोकस फाइंड करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है. फिर सुनना, मूविंग पॉइंट इट इज सेड टू बी लोकस. लोकस पॉइंट, लोकस पॉइंट अपनी मूवमेंट की वजह से जो ट्रेजेक्ट्री बनाएगा या जो पाथ बनाएगा, दैट इज सेड टू बी लोकस. लोकस पॉइंट अगर कभी फाइंड करना हो तो उसके लिए दो इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए. और लोकस पॉइंट वी मस्ट हैव टू इंफॉर्मेशंस, एंड फॉर लोकस आपको दो इंफॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं होती. एक इंफॉर्मेशन अगर गिवन है तो उससे आप लोकस फाइंड कर सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच.